Good morning students, I am Puneet Kumar from Gronda working as assistant professor in RPIT college. Today we discuss in this video how to solve the assignment problem. First of all, there are 5 stations and 5 candidates, and this problem are also given in matrix form, 5 row and 5 column. First of all, for solving the assignment problem, the first step, that is row reduction. In the row reduction, the first row, the minimum element, that is 5, we subtract this minimum element from that particular row. In the first row, minimum element, that is 5, 10 minus 5, 5, 5 minus 5, 0, 9 minus 5, 4, 8 minus 5, 13, 11 minus 5, 6. Now we select the second row. In this second row, the minimum element, that is 6, 13 minus 6, 7, 9 minus 6, 3, 6 minus 6, 0, 12 minus 6, 6, 14 minus 6, 8. In the third row, minimum element, that is 2, 3 minus 2, 1, 2 minus 2, 0, 4 minus 2, 2, 4 minus 2, 2, 5 minus 2, 3. In the next row, the minimum element, that is 9, 18 minus 9, 9, 9 minus 9, 0, 12 minus 9, 3, 17 minus 9, 8, 15 minus 9, 6. In the last row, the minimum element, that is 6, 11 minus 6, 5, 6 minus 6, 0, 14 minus 6, 8, 19 minus 6, 13, and 10 minus 6, 4. This is the row reduction. Now we reduce the matrix by the column reduction. In the first column, the minimum element, that is 1, 5 minus 1, 4, 7 minus 1, 6, 1 minus 1, 0, 9 minus 1, 8, 5 minus 1, 4. In the second row, the minimum element, that is 0, that's why we put the same value, 3, 0, 0, 0. In the third column also, 0 is minimum element, that's why we put the value same. In the fourth column, the minimum element, that is 2, 13 minus 2, 11, 6 minus 2, 4, 2 minus 2, 0, 8 minus 2, 6, 13 minus 2, 11. In the fifth column, the minimum element, that is 3, 6 minus 3, 3, 8 minus 3, 5, 3 minus 3, 0, 6 minus 3, 4 minus 3, 1. Now we reduce the table row wise and column wise, and we put the assignment, because every row and every column a single 0 is appear. In the first row, only one option is available, that's why we scare and assignment. Now in the front of this 0, another 0 will be deleted or cancelled, row wise and column. Here there is no 0 in the row wise. Now in the second, only one option is available, another. In the third row, there are 3 options, 1, 2 and 3. When this 0 select, no. Now in this question, there is no option in the row 4 and row column. Means row 4 and row 5 में हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है. That's why our solution is not optimal. Our solution is optimal when 5 assignment is there. Here is only 3 assignment. Now we further proceeds. First of all, we select that row there is no assignment. In the fourth and fifth row there is no assignment. We tick the
front of that row. Now we check the crossing zero where we tick and tick mark on that column, this tick mark and crossing zero and tick the column. Now when we tick this column, now we check where is assignment. This is assignment and in the front of that row. Same, but in this रो वेयर जहाँ पर हमने टिक मार्क किया वहाँ पे ऑलरेडी हमने एक क्रॉसिंग जीरो है. दिस प्रोसेस इज ऑलरेडी डन. नाउ वी ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. We draw the straight line in the column where the tick mark and column where there is no tick mark. Okay students, now we select the minimum element without lining. Now we check the minimum element, that is 1, and subtract this element. Where two lines intersect, add this value. Single line, no add, no less. No line, less this value. Means जहाँ पर हमारी दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे हम मिनिमम एलिमेंट दैट इज़ 1, इस मिनिमम एलिमेंट को ऐड करेंगे. और जहाँ पर हमारी सिंगल लाइन है लाइक दिस, वहाँ पर हम एज इट वैल्यू रखेंगे, नो ऐड नो लेस. एंड जहाँ पर हमारी कोई भी लाइन नहीं है वहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. एंड ड्रॉ द टेबल. 4 minus 1 3 6 एज इट क्योंकि सिंगल लाइन है, 0 एज इट, 8 minus 1 7, 4 minus 1 3, 0 एज इट 3. यहाँ पे अब दो लाइनें क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. दैट्स वाई वी ऐड दिस वैल्यू. 3 + 1 4, 0 + 1 1, 0 0, 3 0 2 2 7 10 4 0 5 10 2 5 0 2 0. And we again the process. In the first row only single zero, that's why we put the sign. And in the front of this another zero will be deleted, चाहे वो रो वाइज हो चाहे वो कॉलम वाइज हो. In the second row only one option is available, this is assignment. In the third row there are 3 options, 1 2 3. and now अब आप डिसाइड करना, अगर आप इस जीरो को असाइनमेंट देते हो तो ये तो डिलीट होगी और ये भी डिलीट होगी, बट इसके साथ ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डिलीट हो जाएगी. दैट्स वाई वी सेलेक्ट दिस वैल्यू ओनली, क्योंकि हम एक रो में या एक कॉलम में एक ही असाइनमेंट बना सकते हैं. इन दिस कॉलम में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली ये ऑप्शन हमारी फिफ्थ कॉलम में. Our solution is not optimal because there is only 4 assignment, but our matrix are in the form of 5 into 5. जब तक हमारी 5 असाइनमेंट नहीं बनेगी तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. Now we again प्रोसीजर. अब वो रो हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारी कोई भी असाइनमेंट नहीं है. जब हम देखते हैं तो हमारी 4th रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है तो हम टिक मार्क लगाएंगे. अब ये चेक करेंगे जहाँ पर हमने टिक मार्क लगाया है उसकी क्रॉसिंग जीरो कहाँ पर है, उसके कॉलम में हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे. कॉलम में टिक मार्क करने के बाद ये चेक करते हैं कि इसकी असाइनमेंट कहाँ पर है, उसकी रो के फ्रंट में हम क्या करेंगे, टिक मार्क लगाएंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है जिस रो पे अब यहाँ पे आपने टिक मार्क किया, क्या उसकी कोई क्रॉसिंग जीरो है. सपोज करो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग जीरो होती तो यहाँ पे टिक मार्क लगाते, फिर उसके असाइनमेंट पे लगाते, बट यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग जीरो नहीं है. दैट्स वाई हम ये अपना प्रोसेस इतना ही करेंगे. अब वो सेम प्रोसेस हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
कॉलम में जहाँ पर टिक मार्क है, रो में हम स्ट्रेट लाइन वहाँ पे ड्रॉ करेंगे जहाँ पर टिक मार्क नहीं है। एंड अगेन सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट। व्हेन वी चेक तो 2 इज द मिनिमम एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट इट वेयर नो लाइन and where single line no add no less and where two line are intersect add this value 1 6 0 5 3 0। यहाँ पे अब हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी तो हम उस जो मिनिमम एलिमेंट थी 2 उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। 4 + 2 6, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है। 1 + 2 3, 0 एज इट सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी हमारी इंटरसेक्ट हो रही है तो वैल्यू ऐड करेंगे। 3 - 2 1 0 एज इट रखेंगे इसको। 0 7 8 4 0 3 10 0 5 0 0 0। अब हम दोबारा असाइनमेंट देंगे। यहाँ पर इन दी फर्स्ट रो में हमारे पास एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, बट अगर हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली कट होएगी, ये भी कट होएगी और ये भी कट हो जाएगी और ये तो। बट अगर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं ओनली ए सिंगल ही हमारी एक ये और एक ये वाली 0 कट होएगी, बट यहाँ पे अनदर ऑप्शन आर अवेलेबल है, दैट्स वाई वी सेलेक्ट दिस वैल्यू। नाउ इन दिस सेकेंड रो हमारे पास एक ही ऑप्शन, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली 0 हमारी क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे समझना, क्योंकि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये भी कट होएगी, ये भी कट होएगी और ये भी कट होएगी, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगी। दैट्स वाई हम इसको इग्नोर करेंगे और इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। बट यहाँ पे सेम प्रॉब्लम, ये हमारी क्रॉस हो जाएगी। अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि हमारी अभी भी 4-5 असाइनमेंट नहीं बनी है, तो हम दोबारा फिर वो रो सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। फिर ये चेक करते हैं कि उसकी क्रॉसिंग 0 कहाँ पर, उसके कॉलम में लगाएंगे। उसके कॉलम में लगाने के बाद ये चेक करते हैं कि उसकी असाइनमेंट कहाँ पर है, तो ये। अब यहाँ पर समझना डियर स्टूडेंट्स, जब हमने यहाँ पे टिक मार्क किया है तो इस रो में ऑलरेडी 2 क्रॉसिंग 0 है, तो यहाँ पे भी अब हमें टिक मार्क लगाना पड़ेगा। अब दोबारा फिर वही सेम, अगर यहाँ पे टिक मार्क लगाते कि असाइनमेंट कहाँ पर है, ये है, बट इसमें क्रॉसिंग 0 फिर आ गई, बट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसकी चेक करते हैं, इसकी असाइनमेंट कहाँ पर है, इसकी असाइनमेंट ये है, तो इसके यहाँ पर आएगा, इसमें कोई भी क्रॉसिंग 0 नहीं है। अगेन ड्रॉ द लाइन जहाँ पर टिक मार्क है कॉलम में, और रो में वहाँ पे करेंगे जहाँ पे टिक मार्क नहीं है। अब मिनिमम हम देखते हैं 1 है, इसको ऐड लेस करेंगे। ऐड वहाँ पर करते हैं जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट हुई है, लेस वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है, और एज इट वैल्यू वहाँ पर रहेगी जहाँ पर सिंगल लाइन है। तो 1 पर हमारी कोई भी लाइन नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ पे भी लेस करेंगे। 0 पे सिंगल लाइन एज इट रखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 0 6, यहाँ पे ऐड करेंगे 0 2 1 0 3 0 7 7 3 0 2 9 0 5 1 0 0। अब हम इनको असाइनमेंट देंगे इन दी फर्स्ट। उसमें अगर हम चेक करें तो अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाली तो ये क्रॉस होएगी हमारी, ये भी क्रॉस होएगी। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो ये क्रॉस और ये क्रॉस, बट यहाँ पे अनदर ऑप्शन है हमारे पास, तो हम ये वाली क्या करते हैं, अपनी असाइनमेंट बना के चलते हैं। फर्स्ट वाले अगर बनाएंगे तो सेकंड में ये आएगी हमारे पास। हम इसको असाइनमेंट बनाते हैं। इन दी सेकेंड रो में फिर हम इसको असाइनमेंट बनाएंगे। थर्ड में आप इसको असाइनमेंट बनाओ।
बट यहाँ पे हमारी एक बार आप क्या करो, अनदर सेम टेबल पे अनदर ऑप्शन अप्लाई करके देखो, मे हो सकता है आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। Now we select this value, the cross 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 in the second row, in the third, fourth and fifth. स्टूडेंट्स अब आपको ये जरूर चेक करना है कि सेम टेबल से हमारी अनदर ऑप्शन के 5 असाइनमेंट आती है या नहीं आती है, क्योंकि अगर हम ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके चले तो हमारी इसमें भी 5 असाइनमेंट नहीं बनी थी, बट सेम टेबल में जो हमने ये वाली 0 सेलेक्ट की तो हमारी 5 असाइनमेंट ऑलरेडी बन चुकी है। और हमारी जो क्वेश्चन था वो भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में था 5 into 5। अगर हमारी 5 असाइनमेंट बनी तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट फ्रॉम दी, जब हम इन दी फर्स्ट उसमें जो हमारी क्या है असाइनमेंट बनी है फर्स्ट, उसमें सेल जो हमारा 1 1 है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ क्या है वो 10 है, 10 प्लस इन दी सेकेंड रो में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है दैट इज़ 6 है, इन दी थर्ड रो में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू 4, इन दी फोर्थ रो में जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 9, एंड इन द फिफ्थ उसमें जो हमारी एक्चुअल वैल्यू 10। Add all the value 10 plus 6 16, 16 plus 4 20, 20 plus 9 29, 29 plus 10 39. This is the complete procedure of assignment problem. I hope you already understand. If you have any problem you can contact me. My contact number is 98965 98256. Okay students, thank you so much.